Good morning, students. So last class रे हमें किसी addition polymers विषय पढ़िथिलु. We discussed certain addition polymers. So first, which monomers undergo addition polymerization? को monomer ने addition polymerization form करती? ना those having double bonds. Double bond का break करे, it gives the molecule bifunctionality. Then they combine laterally to form a huge chain or giant chain. Last class में mostly तुम सब ethylene base में discuss कर दी थी. Just butadiene base का start करती. So remaining will start from the next monomer of butadiene base here na chloroprene. Chloroprene कौन ना same रहिबो formula खाली गोटा hydrogen replace करियो butadiene ला लागबो chlorine atom. So it becomes chloroprene. So when we take large number of chloroprene monomers, they combine laterally in presence of a catalyst. ये catalyst रहेगा ना potassium persulfate. Potassium persulfate. ताले केमती आइलो जाबो केमती polymerize जाबो देखो ना C it break करिगला C double bond will be shifted to the middle C okay H remaining unchanged रहइबो तो सेटा हम प्रैक्टिस करतबो जहा थिबो केवल डबल बॉन्ड शिफ्टिंग हबो बाकी अनचेंज्ड रहइला okay so this becomes the polymer जहा नाम हबो तो neoprene or GRM GR कोइची गवर्नमेंट रबर GRM रबर काहे की ना during एरा कोन ओटा synthetic rubber so initially when synthetic rubber was discovered it was of high demand synthetic rubber का फर्स्ट बारला ता डिमांड एते हाई हला जे यूएस रो गवर्नमेंट ताको कंट्रोल करिया पई निजस्व ब्रांडिंग कला कहितले लास्ट क्लास रे दैट्स व्हाई GR naming is introduced GR means government rubber okay so this is how your polychloroprene or neoprene rubber is formed okay then asiba uses ko so because it is chemical resistance बहुत strong जिनस ये form करे तेनो mostly used for manufacturing hoses देखिथिबो लंबा लंबा strong pipe ताको होस करा जाए ताको प्रोड्यूस करा जाए तापर जोतार हिल शो हिल जोतार जो पिंच जोता तार हिल तैयार करिया पई तापर कन्वेयर बेल्ट्स जोथरे ट्रांसपोर्टेशन करा जाए कन्वेयर बेल्ट्स तापर रोलर्स etc so these are the ultimate uses of the synthetic rubber called neoprene or GRM rubber. So next we will be going to the next base called natural rubber. Okay. So next students, as you can see, we will go to natural rubber and gutta percha. Difference with the configuration difference. So this is called isoprene. This is isoprene, the monomer for both natural rubber as well as gutta percha. Eta kon कहबा हमें now when the functional groups are on the same side of the main chain ताको हम कहबा cis isoprene जदि functional group पूरा same side रहिबे that is called cis isoprene जदि functional group पूरा opposite end रहिबे ताले कहबा हमें trans isoprene so when cis isoprene is the monomer and it polymerizes कोन दबो से so when it will polymerize it will form केन देबो देखो C डबल बॉन्ड टा शिफ्ट करियो मजी को C H CH3 H रिएक्शन कला पहले ये गला कौन cis polyisoprene cis polyisoprene which is called natural rubber. It is the natural rubber. ताले तुम क्वेश्चन आसे छुआ what is the monomer for natural rubber isoprene खाली लिखले चलिबोनी you have to write cis isoprene is the monomer for natural rubber अच्छा नेचुरल रबर कौन ना है जे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर गुडे रुहे ताको हम जदि स्ट्रेच करिवो इट कैन बी एक्सपांडेड किंतु इलास्टिसिटी कम
So natural rubber has a coil like structure with low elasticity, low strength. तेणु कौन करा जाए ना it is vulcanized. ताले क्वेश्चन आसीबो what is vulcanization of rubber. नेचुरल रबर को हमको vulcanize करियो पड़े. That is called vulcanization of rubber. काहे की ना जेहेतु तार इलास्टिसिटी लो coil like structure ताकि स्ट्रेटन करिया पई कौन करा जाए ना it is heated with 3 to 5% सल्फर. सल्फर काहे हीट करा जाए एबे देखो. अच्छा सपोज दीज आर दी चेन्स ऑफ नेचुरल रबर. कहिछि तुमको चेन छोड़ा पैरेलल थांती. ओके सो दे हैव अ कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, कॉइल परि स्ट्रक्चर अछि. तेणु सेमानकर इलास्टिसिटी कम, स्ट्रेंथ भी कम. सल्फर देले कोन हबो ना सल्फर विल इंट्रोड्यूस ए क्रॉस लिंक लाइक दिस. मझे मझे कोन करबो ये क्रॉस लिंक कर दबो. क्रॉस लिंक कर देले कोन हबो ता इलास्टिसिटी इंक्रीज करबो, ता स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दिबो. सो सल्फर काम कोन इट इंट्रोड्यूसेस क्रॉस लिंक इन दी चेन ऑफ नेचुरल रबर. तेणु नेचुरल रबर को हमको vulcanize करना पड़े. जब तुम क्वेश्चन आसला व्हाट इज vulcanization of rubber, now you have to write down that vulcanization means heating the rubber with 3 to 5% sulfur. sulfur काम कौन कहि देली it introduces bridges or cross link. मझे मझे cross link कर दे so that कौन हबो they will be rigidly held with each other. जो तुम्हारा स्लिपेज होतला चेन उडा लॉन्ग चेन उडा समान rigidly held है कि रहिबे. So if the sulfur percentage is increased up to 32%, the hardest of all rubber is formed. The hardest of all rubber called ebonite is formed. Ebonite रे मन रखिबो सल्फर परसेंट केते दियाइता है the highest 32% परसेंट सल्फर दियाइता है with zero elasticity. यार इलास्टिसिटी टोटल नहीं. So यदि तुमको पढ़ला क्वेश्चन you have to remember these things. Vulcanization of rubber means heating the rubber with sulfur. Sulfur काम कौन it introduces cross links or bridges between the parallel chains of the natural rubber. ताले कौन देता को strength दे elasticity ता increase करे. जदि हम sulfur percentage बढ़ेबा से hard होई चलिबो. So when the maximum percentage of sulfur become 32%, the hardest of all rubber called ebonite with zero elasticity is formed. Okay, so this is all about your natural rubber. Next we will discuss gota parcha. Students, next आसीबा में gota parcha को कौन डिफरेंस देखछो. ये द फंक्शन जदि ती लॉन्ग चेन हितला अब क्लियरली यूज था. तो मु जेतु शॉर्टर चेन रखिछि एठी मन रखिबो कोन हबो इट इज ट्रांस आइसोप्रीन. अर्लियर ईयर हम लेथिलु सिस आइसोप्रीन, एटा होछि ट्रांस आइसोप्रीन. कोन हबो ना द फंक्शनल ग्रुप्स विल बी प्रेजेंट इन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द मेन चेन. जोठी फंक्शनल ग्रुपटा ऑपोजिट साइड रे रहिबे ताको हम कहबा ट्रांस आइसोमर. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांस आइसोप्रीन. सो व्हेन इट विल पॉलीमराइज ताले ये कोन फॉर्म करबो ना ट्रांस poly isoprene. It will form trans polyisoprene which is called gota parcha. G-U-T-T-A-P-E-R-C-H-A. Gota parcha. ताले मन रखिबो जे तुम क्वेश्चन आसला what is the monomer of gota parcha, you have to write trans isoprene. खाली isoprene लिख देले ठीक हबनी. It is trans isoprene. Okay, gota parcha तुमको कहितली यूजेस कौन because it is biologically inert. As it is biologically inert, it is mostly used in dentistry. Dentistry माने डेंटल रिलेटेड स्टडी टा कह जाए डेंटिस्ट्री. जो तुम्हें करछ रूट कैनालिंग लाइक रूट कैनाल थेरेपी आरसीटी रे जो पॉलीमर यूज हुए दैट इज कॉल्ड गटा parcha. रूट कैनाल थेरेपी यूज हुए आउ कोथरे यूज हुए ना इट इज यूज्ड एज इंसुलेटर्स और इंसुलेटिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया. So used as insulators. Earlier days it was used to make cabinets. जेतले फास्ट बाहरला बहुत डिमांड रहला रेडियो कैबिनेट एतन तैयार को कैबिनेट्स ऑफ रेडियो. ओके
So this is all about your gota parcha. One रखियो खाली difference. Our question is what is the difference between natural rubber and gota parcha? What will be your answer? Now only the difference is the monomer. If the monomer is cis-isoprene, the polymer will be natural rubber. If the monomer is trans-isoprene, the polymer will be gota parcha. That's it. Okay. So with this we complete the addition polymers. So जेमती जानिछे polymer chemistry is a huge branch of chemistry. तो सबुतक polymer discuss करिया possible नुहे. Mostly आम को पार्ट डिस्कस करछु. So which are the possible questions which are as per your syllabus. तो syllabus अनुसार जहाँ जहाँ अछि आम mostly से important polymers रा केवल डिस्कस करछु. जदि आम सबुतक डिस्कस करबी it is not possible to complete even one chapter. Okay. So next we will come into some important condensation polymers. तुम कहि सछि which type of monomers they undergo condensation polymerization by step polymerization by step group polymerization? ना monomers having reactive functional groups. ताको हम को polar functional groups. जो हम reactive functional group थाए they combine together with elimination of simple molecules to form a polymer. ताको हम को condensation polymer. So under this heading we will mostly discuss three different types. गोटे होची polyamides, आउट होची पॉलीइस्टर्स, आउट होची फिनोल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन. आउटर केवल गोटे पढ़िबा दैट इज कॉल्ड बेकेलाइट. मोस्ट इंपोर्टेंट वन एथरे पढ़िबा में बेकेलाइट. पॉलीअमाइड अंडर आछि नाइलॉन्स. तब कहजे नाइलॉन्स बहुत प्रकार अछि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट. नाइलॉन्स बहुत नेमिंग अछि. तुमको नाइलॉन 610, नाइलॉन 10, नाइलॉन 11, नाइलॉन 26 लाइक दिस. ओके. सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन इट नाइलॉन बहुत प्रकार ही परिबो. तो ताको कहजे पॉलीअमाइड्स. पॉलिस्टर हमें मोनली गोटे पढिया केवल एक्सप्लोर कोर्स पॉलीइथिलीन टेरेथालेट PET. Polyethylene terephthalate. Okay, so let us start with polyamides. को मान को polyamides को आगे देखिबा polyamides. Okay, polyamides means the repeating unit will be NHCO. So this is called amide linkage. এটা কোন কয়া যায় amide linkage. तेणु जो पॉलीमर रे एटा रिपीटिंग यूनिट अछि दे विल बी कॉल्ड polyamides or nylons. मन रखिबो द रिपीटिंग यूनिट विल बी NHCO. ताले जो मोनोमर उडा एथरे भाग नेबे सोनका कोन थिया दरकार NH अछि माने कोड आसला देखो ना इट शुड हैव ए amine group. It should be a having amine group and carboxyl group. जदि एथुरु दुईटा थाए so if they contain dicarboxylic acid and diamines ताले कोन हबो ना एठी they will combine here to form water. Elimination हबो water molecule एवं एठी देखो आसीबो bond will be here जोटा एठी आसी. So this is the basis. ताले कोन हबो गोटे diamide and dicarboxylic group जदरा थिबा मोनोमर जदि रिएक्ट करिवे they will form polyamides. Okay, we will start with the first example. कोन देई सकथिले ऑलरेडी तुमको nylon 6:6. nylon 6:6 मोनोमर्स कोन अछि कोन हला ना हेक्सामेथिलीन डाइअमीन आउट होची एडिपिक एसिड. हेक्सामेथिलीन डाइअमीन आउट होची एडिपिक एसिड. हैला hexamethylene diamine. So let us start with a nylon 6:6. Somebody tell 66, no problem. But you have to follow this side. It has 6 carbon atoms. That side also it has 6 carbon atoms. ताले कौन टू स्टार्ट करिबा ना हेक्सामेथिलीन माने दिस इज मेथिलीन ग्रुप. छोटा रहइबो हेक्सामेथिलीन डाइअमीन. दुईटा अमीन रहइबो NH2 here, NH2 here. This becomes
methylene diamine. So one of the monomer is hexamethylene diamine. अब क्या रहबो कहली एडिपिक एसिड फार्मूला कोन कहथिले ना 4 methylene groups 4 then this is adipic acid. Okay, this is the another monomer called adipic acid. So when they will combine together, they will polymerize when taken in large numbers, n numbers. ताले कौन होगा देखो ना these two will combine to eliminate one water molecule. ताले इटू कम्बाइनिंग साइट आस जो कोइछि NH ओडा रिपीटिंग यूनिट हो ताले एठी ओडा बॉन्ड आस जिवो आउ एपटो कोन हबो इट विल गो अवे विथ दिस वन देखो एठी गोटे गोटे मिसी गोटे वाटर मॉलिक्यूल एठी गोटे गोटे मिसी गोटे वाटर मॉलिक्यूल माने पर पेयर दुईटा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हबो सो माइनस 2n - 1 H2O एति की एलिमिनेट हबो ताले कोन फॉर्म हबो देखो भलो कम फॉलो करो एपटे देखो आसी गला के N H रहिला C H होल 6 जेमति रखता रहिला तापर रहिला N H एडी बॉन्ड आसी गला C O तापर चारटा लखे देलो CH होल 4 तापर क्या रह गला C डबल बॉन्ड एटा स्टार्ट कर दियो एडीएन लगे दियो ताले आना कोन कहैतिली पॉलीहेक्सामेथिलीन एडिपेट इट इज कॉल्ड पॉलीहेक्सामेथिलीन एडिपेट पॉलीहेक्सामेथिलीन एडिपेट polymer's name is polyhexamethylene adipate short में कौन कहू आपको नाइलॉन कौन सी रिपीटिंग यूनिट के रहला NHCO means it is an amide or nylon एपटे कार्बन केतना रहला देखो 6टा एपटे रहला 4 + 2 6टा so nylon 6:6 because it contains 6 carbon atoms on either side so this is how nylon 6:6 is formed okay so next we will be going to nylon 6 it is also known as porlon so nylon 6 is or porlon is formed by the self condensation of देखा केंति लिखा है एप्सिलॉन चिन्ह दिया है so it is called epsilon aminocaproic acid or it is also called AHX aminocaproic acid in some books it is also written as 6 aminocaproic acid so better you remember it as epsilon aminocaproic acid तो सेल्फ कंडेंसेशन ता कोन तुमको आईडिया दवा पे आगे उठे लिखि दोछि मनकर दुईटा मॉलिक्यूल लगा हमें से सेम रो कोन ना ई अमीनो काप्रोइक एसिड बा एप्सिलॉन अमीनो काप्रोइक एसिड रो हले तो हाउ सेल्फ कंडेंसेशन टेक्स प्लेस देखि आपे तुमको एटा आगे डेमोंस्ट्रेट करूछि सो व्हाट इज सेल्फ कंडेंसेशन ना एथे देखो दुईटा को रिएक्टिव बनो फंक्शनल ग्रुप रहिछि कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहिछि अमीन ग्रुप रहिछि गोटिया मॉलिक्यूल रहिछि सो दे अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन एटी आउ ताको सेकंड मोनोमर दरकार हो नाही काहे कि ताको पाखरे सब अछि सो व्हाट इज सेल्फ कंडेंसेशन मन करो दुईटा नेले समान नेछु कोन हो देखो ना हियर it will combine to form water molecule will be eliminated here another water molecule will be eliminated here okay so what they will form now this side will be unsatisfied valency there will be bond here it will be bond as jibo au it is here it unsatisfied valency as jibo तल केमति फॉर्म करियो देखो ए गोटे पेयर पय देखाइ दोछि देखो n h एटा आंसर रहला होल 5 C O N H एटी कोनी आसी गला C H
H whole 5 ये आसीगला CO. So this is how the chain will lengthen on. चेन जल्दी बड़ी बड़ी चलियो ताले रिपीटिंग यूनिट किया देखो एग्जैक्टली दिस इज द रिपीटिंग यूनिट NHCO. ओके सो इन वन वे तुम खाली बुझिया पई कहले एमती केमती सेल्फ कंडेंसेशन हुए मैं तुमको देखाई दूची व्हाट एग्जैक्टली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6. ओके सो तुमको देखाई देली केमती दुईटा मोनोमर मॉलिक्यूल्स सेल्फ कंडेंसेशन होचंदी कारण एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड रो. तो एक्चुअली को फॉर्म लिखिबा ना n नंबर्स ऑफ एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड नबा ताले कोन हबो ना इट विल अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन ताले n-1 H2O रिमूव होबो एवं दिस विल बी द पॉलीमर व्हिच विल फॉर्म नेम्ड एज नायलॉन 6 और पर्लोन. हैला सो दिस इज वन ऑफ द वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 6 और पर्लोन. अनदर वे तुमको होची ना नायलॉन 6 इज आल्सो फॉर्म from caprolactam. Caprolactam is a closed ring one. तुम तो कहते हो वाटर सागर में हाई टेम्परेचर दो it undergoes self polymerization. Confirm करे the same nylon 6. So you have to remember also the monomer for nylon 6 is caprolactam or epsilon amino caproic acid. Caprolactam भी कौन होगा when it is heated in presence of water it undergoes self polymerization. Self polymerization होगा एवं confirm करिवा the same nylon 6 or पर्लोन. Nylon 6 केमती नेमिंग हला देखो how many carbon atoms are there एटी पांचटा एटी गोटे 6 so that's why it is named as nylon 6. तापर आछे uses to it is mostly used for manufacturing ropes, your tire cords, gears, bearings and electrical fittings or electrical mountings. Okay so next we will be discussing two more nylons किंतु टिके चेंज करी मु डिटेल्स रे कहिबिनी मु तुमको नेम ऑफ द मोनोमर्स दे देबी ता स्ट्रक्चर दे देबी you have to send it to me जे पॉलीमर केमती फॉर्म हो. ओके सो स्टूडेंट्स तुमे माने मु भाउची बुझी पाथि वर्तन हाउ कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म दुईटा वे अछि टू डिफरेंट मोनोमर्स विथ डिफरेंट रिएक्टिव फंक्शन को जदी कंबाइन करिवे नले जदी सिंगल मोनोमर अछि हैविंग टू डिफरेंट पोलर फंक्शनल ग्रुप्स ताले से सेल्फ कंडेंसेशन हेकि नायलॉन फॉर्म कर परिबो बा तुमको जोटा कहूछु अमाइड फॉर्म कर परिबो. ओके सो तुमको दुईटा असाइनमेंट देली गोटे हला नायलॉन 610 माने ऑब्वियसली एपटे 6 टा कार्बन थिबो सेपटे कतरा अछि देखो एठी 8 ये 2 10 सो दे विल कंबाइन टुगेदर और पॉलीमराइज टू फॉर्म नायलॉन 610. सो तुमको पॉलीमराइजेशन ता केमती होची मते सॉल्व करके पठिया पड़ो. देखिबो केमती पॉलीमराइज होची केता हो -2n -1 H2O एलिमिनेट हबो एवं फॉर्म हबो जो पॉलीमर ता नाम कोन हबो नायलॉन 610 काहे ना एपटे 6 टा कार्बन रहबो एपटे 10 टा कार्बन रहबो तो ता नाम हबो नायलॉन 610. नेक्स्ट आसीबो नायलॉन 11 हैला एठी टिके जस्ट चेंज हिची कोन हला ना सेल्फ कंडेंसेशन कहिछि सेल्फ कंडेंसेशन को बनेबे ना जो मन को बोथ फंक्शनल ग्रुप होची प्रेजेंट गोटिए मोनोमर रे एठी देखो अमीन ग्रुप भी अछि कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अछि सो इट इज कॉल्ड ओमेगा अमीनो ऑनडेकानिक एसिड किछि बुक्स रे भी 11 अमीनो ऑनडेकानिक एसिड लिखाइ छै. सो यू रिमेंबर the way you like जोंती इच्छा हो तुम मन रखो ओमेगा अमीनो ऑनडेकानिक एसिड बा 11 अमीनो ऑनडेकानिक एसिड. सेल्फ कंडेंसेशन हबो सेल्फ कंडेंसेशन हेले कोन हबो ना देखो वाटर एलिमिनेट हबो बटे तो जेमति तुमको देखैतिल को केस रे नायलॉन 6 केस रे सिमिलरली यू सॉल्व इट फॉर नायलॉन 11 एंड सेंड इट टू मी. सेल्फ कंडेंसेशन हबो फिर केते हबो -n-1 H2O ताले जो पॉलीमर फॉर्म हबो ता नाम हबो नायलॉन 11. सो the video is being very lengthy so this is for today. Solve करी मते निहाती पठेबो. See you in the next class. Thank you.